Hello students, welcome to the video lecture series for the subject currency banking. Student, in our live classes we were talking about the structure or the components of Indian money market, where we have talked about the two different sectors, that is organized sector and unorganized sector. Now in this video I'll be talking about the various instruments of money market, obviously of the regulated or the organized sectors. Now very first instrument is the call money market. Now this we have already discussed in our live class itself. बेसिकली 14 डेज के लिए आपको जब बैंक आपस में लोन देती हैं, यानी कि कॉल मनी मार्केट वो मार्केट है जहां पर फंड्स को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं फॉर ओवरनाइट. ठीक है, पॉइंट नंबर 1. एंड उसमें वेन एवर वी वॉन्ट वी कैन गेट बैक अवर फंड्स. पॉइंट नंबर 2. एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी पैसा दिया जा रहा है, दिस इज समथिंग विच इज डन बिटवीन द financial institutions, which is done among the financial institutions. और ये सबसे शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि इसका मैक्सिमम जो ड्यूरेशन होता है वो 14 डेज का होता है. तो इसमें क्या है कि सीधा सा है, जो lender can anytime call back the amount which has given, and in that case the borrower has to return that money with an immediate notice. और यहाँ पर मेन जो आपसे important बात ये है कि the rate of interest is comparatively high. Okay, so the main participants in the call money market are commercial banks, even commercial banks, all kind of scheduled and non-scheduled banks, and even the cooperative banks, even the discount finance housing, like House of India. Then even various non-banking financial institutions such as LIC, GIC, UTI, NABARD, etc. They are the participants in the call money market. Okay, so students, like this is the PDF which you can prepare from this video itself. You can prepare for the notes. Like when I'm talking about the call money market, so it's a loan which is given overnight for a maximum period of 14 days. Okay, now next comes the treasury bills. ट्रेजरी बिल्स नाम से समझ जाइएगा कि ये वो सिक्योरिटीज़ हैं जो आरबीआई इशू कर रही है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. नाउ ये भी शॉर्ट टर्म, क्योंकि मनी मार्केट मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स हैं. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 तरीके के ट्रेजरी बिल्स इशू करती है. 91 डेज के, 182 डेज के एंड 364 डेज के ट्रेजरी बिल्स हमारी आरबीआई इशू कर रही है. Now there are no treasury bills issued by the state government. Obviously this is done, these bills are actually issued by the central government. Okay, now treasury bills के साथ याद रखना है कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म है, क्योंकि अगर बिल्स ये इशू करे गए तो दिस मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ अ बोरोइंग फॉर द गवर्नमेंट. ओके, नेक्स्ट कम्स द कमर्शियल बिल्स. नाउ कमर्शियल बिल से क्लियर हो जाना चाहिए. कमर्शियल नेचर मीन्स कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो शॉर्ट टर्म है, नेगोशिएबल है, मीन्स इजीली ट्रांसफरेबल है, एंड सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, और यहाँ पर रिस्क एलिमेंट भी बहुत कम होता है. तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली एक सेलर ड्रॉ कर रहा है ऑन द बायर in order to pay for the value of the goods, वो हमारे कहलाते हैं कमर्शियल बिल. इसीलिए कमर्शियल वर्ड है, बिकॉज कहीं ना कहीं द मेन इंटेंशन इज टू प्रमोट द ट्रेड. नाउ इफ द सेलर गिव सम टाइम फॉर पेमेंट, द बिल इज पेबल एट अ फ्यूचर डेट. उसको अगर उसी में मेच्योरिटी, लाइक जनरली द मेच्योरिटी पीरियड इज अप टू 90 days, and during the use period if the seller is in need of funds, he may approach the bank and can get the bill discounted with the bank and can get the money. तो this is commercial bills. basically ये वो bills हैं, जैसे आप bills of exchange की हम बात करते हैं, वो सब इसी ambit के अंडर आते हैं. Okay, so hope you are clear with this. Now very next instrument is basically your certificate of deposits. So certificate of deposits are unsecured, negotiable promissory notes which are issued at discount of to the face value. Certificate of deposits basically issued at discount. They're issued by the commercial banks and the development financial institutions. Now commercial ये जो certificate of deposits हैं basically इसमें क्या होता है कि जो भी receipt of fund होगा वो बैंक में जाके उसको deposit करेगा for a fixed period and at a specified rate of interest, and gradually आप जब चाहो साहब से उसको एनकैश करा सकते हैं. नाउ CDs were introduced in India in June 1989. The main purpose was to enable commercial banks to raise funds from the market through CDs. Means certificate of deposits के नाम पर कि आपको एक सर्टिफिकेट इशू कर दिया कि ये आपका पैसा हमारे पास है और उसके लिए उतने ड्यूरेशन के लिए आपको इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स आपको पे कर रही है. नाउ अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल स्कीम, CDs were issued in multiple of rupees 25 lakh, subject to minimum size of being rupees 1 crore. Now they had the maturity period of 3 months to 1 year, and they are again negotiable. They are freely transferable, but only after the lock-in period of 45 days after the date of issue. Once the date of issue
के बाद 45 डेज लैप्स हो जाते हैं तो आप इसको फ्रीली ट्रांसफरेबल भी रख सकते हैं. Okay, now next is commercial papers. Again, it is an unsecured money market instrument which is issued in the form of a promissory note with fixed maturity. इनकी maturity period fixed है. इसका मतलब है कि ये एक शॉर्ट टर्म ओब्लिगेशन है इशूअर के ऊपर. जब से ड्यूरेशन पूरा होगा आपको अमाउंट पे करना है. दे आर क्वाइट सेफ एंड हाईली लिक्विड, इजीली कन्वर्टेबल. Now they are generally issued by the leading, nationally reputed, highly rates and credit-worthy large manufacturing units. Okay. Now next, commercial papers were launched in India. Commercial papers were launched in India with a view to enable highly rated corporate borrowers and to diversify the source to the various instruments, to diversify the source of short-term borrowings and also to provide an additional instrument to investors. Okay, so students, commercial papers are again a kind of an instrument which are actually issued by the banks. Okay, now next is repos and reverse repos. The student, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, reverse repo rate and repo rate पे क्वेश्चन आता है. यानी बेसिकली ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है. नाउ अंडर रेपो अगर मेंशन करें तो सेलर गेट इमीडिएट फंड्स बाय सेलिंग द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज विद द अग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सेम एट अ मेच्योरिटी, लाइक मेच्योरिटी. ओके, सो प्लीज इसी तरह याद रखना है कि अगर जब हम बोरो करते हैं और उसमें कंडीशन मेंशन है कि वी विल रीपर्चेज द सेम आफ्टर अ स्टिपुलेटेड टाइम, रेपो हो जाता है. और सिमिलरली द बायर परचेजेज अ सिक्योरिटी विद एन एग्रीमेंट. परचेज करा है पर इस एक अग्रीमेंट है कि भाई हम रीसेल कर देंगे सेम अगर सेलर को, अगैन एट एन अग्री डेट, वो आपका रिवर्स रेपो होता है. तो रेपोज इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया सिंस दिसंबर 1992. नाउ सिंस नवंबर 1996 आरबीआई ने भी इंट्रोड्यूस कर दिया था रेपो रेट्स एंड रिवर्स रेपो रेट्स, जो हम आपको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे. Now next is Discount and Finance Housing of India. It is again one of the subsidiaries to RBI. It was set up by RBI in April 1988 with an objective of deepening and activating the money market. It is jointly owned by RBI, public sector banks and all the Indian financial institution which has contributed in its paid up capital. तो अगैन जो DFS डिस्काउंटिंग एंड फाइनेंस हाउस हैं ये बेसिकली इशू करते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, कॉल मनी बेनिफिट्स, ये सब है. नाउ ये जो मार्केट है ये इंडियन मनी मार्केट का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो असेस करता है कॉर्पोरेट हाउसेस को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एंड बैंक्स को विद रिस्पेक्ट टू द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ फंड्स. ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट इज मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स है जिसमें हम इसमें म्यूचुअल फंड्स होल्ड करते हैं ताकि हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के ग्राउंड पर उनको हेल्प कर सकें. नाउ म्यूचुअल फंड्स मोबिलाइजेस द सेविंग्स फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर्स. भाई म्यूचुअली हेल्ड है ना, तो स्मॉल इन्वेस्टर्स थोड़ा थोड़ा अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और फिर हम उसको इन्वेस्ट करते हैं इनटू शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स. एंड इसमें भी मनी यहाँ पर भी वी यूज कॉल मनी बेनिफिट्स, रेपोज, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड कमर्शियल पेपर्स. नाउ दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर फॉर्म ऑफ डेब्ट विच मेच्योर इन लेस दैन एन ईयर. तो ये याद रखना क्योंकि शॉर्ट टर्म है, ऑब्वियसली 1 ईयर ड्यूरेशन मिलता है. ओके, और जब हम बात कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगैन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो है इंडिजीनियस बैंकर्स. Indigenous bankers which operates as banks, which receives deposits, which give loans and deals in hundis. Along with that there are money lenders जो local money lenders हैं, indigenous हैं, वो अपने मनमाने तरीके से loan and benefits provide करते हैं. Now next, इसके अलावा unregulated non-banking financial intermediaries हैं जिसमें चिट फंड्स, निधि फंड्स एंड इवन द ब्रोकर्स, ये सब ऑपरेट कर रहे हैं जो आपको असिस्टेंस दे रहे हैं शॉर्ट टर्म नीड्स का, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ रेगुलेटेड मार्केट, दे आर द पार्ट ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर. तो स्टूडेंट्स, दिस वॉज द वीडियो विद रिगार्ड्स टू द इंस्ट्रूमेंट्स. जस्ट गो थ्रू दीज इंस्ट्रूमेंट्स. कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में विल टॉक अबाउट आई हैव ऑलरेडी गिवन द कंटेंट. आपके पास ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगी फोटोज क्लिक करके, जहाँ पे हम फीचर्स जो हमने ऑलरेडी बात करी है एंड फीचर्स के साथ साथ व्हाट ऑल रिफॉर्म्स. तो दीज आर द लॉन्ग क्वेश्चंस व्हिच यू कैन प्रिपेयर. ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस विच यू कैन प्रिपेयर. इतना पोर्शन आपको इसके रिगार्डिंग स्टडी करना है. तो मैं इसका PDF आपको अभी शेयर कर दूंगी, बट ये इस वीडियो में भी है. अगर आप चाहें तो पॉज करके इनके नोट्स रिलेटेड आप बना सकते हैं. ओके, चलिए फिर. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग. वील मीट यू इन द लाइव क्लास. थैंक यू क्लास.